A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics class 12, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay. So from the previous few classes we have revised all the chapters which is related to the macroeconomics and the Indian economic development, because many of the students have facing the problems while calculating the numericals which is related to the income determination and the multiplier as well as the national income. We have explained all the diagram of your aggregate demand, aggregate supply, income determination, multiplier, excess demand, deficient demand, monetary measures and so on. Foreign exchange rate, balance of payment. Okay. So after that we have started to solve the latest sample paper of CBSE of 2020. So from the previous, I think 3 or 4 class where we are continuously solving all the papers. Basically we have started with the macroeconomics and we have already discussed about the general instructions, paper pattern, number of the questions and division of the numbers of questions, like 1 mark question, 3 mark question, 3 marks question, 4 marks question and the 6 marks question. Okay, so we have started with the section A, that is macroeconomics. So first of all let us recapitulate and after that we will start today's class. So we have to start with the question 1, that is inventory is a fill in the blank and the change in inventory is a. So we have discussed that the inventory is a stock concept and the change in inventory is a flow concept, because inventory is talking about the at a point of time and the flow is the at a period of time. So next in first question there is also question of which is given in the OR, that is if an economy the value of the NFIA is given and the factor income paid to abroad is given. So you have to calculate the factor income received from abroad. So we know very well that the net factor income NFIA, that is net factor income from abroad, is equal to the factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. So when the paid to abroad is given and the factor income from abroad is given, so we can calculate the value of the factor income received from abroad. So we have already done and the answer of that question is rupees 240 crore. Next that question which is related to the COVID-19 times, and you are suggested as a member of your high committee. So what you will do when there is a situation of the deflationary gap or the deficient demand, so what you will do, you will increase the money supply or the decrease the money supply. You will restricted the money supply in an economy or the release the more and more money supply in an economy. In that case, in the deficient demand or the deflationary gap, there will be release of the money supply so that the income in the economy increases, disposable income will increases, so that there will be the increase in the consumption expenditure, increase in the investment expenditure. So the situation of the deficient demand, that is AD is less than AS, so that situation will be recovered when the AD is equal to AS, right? So next question, sorry, that is supply of money. Supply of money is related to the basically the currency held by the public and demand deposit with the commercial bank. Okay, so supply of money is simply the currency held by the public and demand deposit with the commercial bank. Next question is identify the correct pair. So the correct pair is the current account surplus. Current account surplus is when the receipt is greater than payment. So your second point, second, that is B is right. So B and second, B is your right pair. Next question is the identify the following statement is true.
So we have already talked about the what is fixed exchange rate system, flexible exchange rate system, and the managed floating. So fixed exchange rate system is that system in which the exchange rate is determined by the government. Flexible or the floating exchange rate system is a system in which the rate is determined by the market forces, that is demand and supply. And the third one is managed floating. So it is the combination of the fixed exchange and the floating exchange. So first of all, the market forces determine the what will be the rate exchange rate, but if it is not in the if it is uncontrollable, so that there is intervention of the RBI, that is Central Bank of the country. So in this, your third option, that is in the managed floating exchange rate system, the central bank intervene to moderate exchange rate fluctuation. So that third point is right answer. Next question, an Indian real estate company receives rent from the Google in New York. So the correct answer is that it will record it in the credit side of the current account. So after that, there is one passage given here, and related to that 4 questions are given. So you have to, first of all, you have to read out all the passage, which is of I think 7 to 8 lines, and you have to give the answers. Okay. So next question that we have already discussed, that is state with the valid reason which of the following statement is true or the false. So first one is GVA at MP and the GDP at MP is the same or equal. So we have already discussed, that is this statement is false. We have already discussed all these questions. Next one is intermediate goods are always durable in nature. So this is also false, because it is the non-durable in nature, because whenever we use the intermediate goods for the production of the final goods, they lose their identity and they are not durable in nature. The question number 12. So question number 11 is of 3 marks. Question number 12 is also of 3 marks. So the question is also given here, state giving valid reason whether the following statement are true or false. So the question is current account in BOP. BOP means balance of payment, records only the export and import of the goods and services. So this statement is also wrong or false, because in the current account we also include the unilateral transfer income from the investment. So this statement that BOP records in the current account, BOP records only export and imports of the goods and services. So this statement is wrong. Next question is borrowing from the abroad in the capital account of the BOP is in the debit side. Okay, so borrowing from the abroad, it is recorded in the capital account, but it is not in the debit side. We will include it in the credit side because it is the income or inflow of the foreign exchange. So inflow of the foreign exchange is the positive items for the country, so it will include it in the credit side of the capital account, right? So next question is define multiplier. So this question we have discussed in the last class, that is question number 13, multiplier. So how many times the money is multiplied. So this is the formula of the money multiplier is MM. Money multiplier is equal to 1 upon LRR, right? Money multiplier is equal to 1 upon LRR. So till here we have already discussed in the previous class. In today's class we are going to study some questions. First of all, we will discuss with the 13 question multiplier and the what is the relation between the credit creation and the multiplier, and after that we will solve some numerical questions also. Okay, so let's get started. Okay, so question number 13. We have already discussed the question number 13 part A, that is define multiplier, money multiplier. Next question is credit creation is inversely related to the reserve deposit ratio. कि जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. हाँ, कि हम लोग ने पढ़ा है किस चैप्टर में, हम लोग ने पढ़ा है
क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक करती है, ठीक है। क्रेडिट का क्रिएशन कौन करता है? सारी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। और क्रेडिट मनी की जो सप्लाई हो रही है वो कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है वो, और जितना LRR है उसमें क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। बिकॉज अगर LRR ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, आप लोग याद करिए, जब हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे थे तो उसमें LRR का हम लोग ने लिया था, दैट इज 20%, ठीक। तब 20%, अभी यही LRR अगर क्या हो जाएगा, LRR इसको हम लोग 50% कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कम। अब जैसे मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक। 1/LRR 20% हो गया आपका, बताइए कितना? 5 टाइम्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मनी मल्टीप्लायर मतलब अगर रिजर्व जो भी डिपॉजिट का रेशियो है 20% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो रहा है? 5 टाइम्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 हम लोग का क्या था? इनिशियल डिपॉजिट था 5000, तो इसका मल्टीप्लायर मल्टीपल टाइम्स कितना होगा? 5 × 5 दैट इज 25,000 होगा। वहीं अगर LRR को 50% कर दिया, ये LRR कौन डिटरमाइन करता है, कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, इंडिया में RBI। अब अगर ये LRR 50% हो गया तो MM मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ये कितना हो जाएगा? 1/50%, 50% मतलब 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स से होगा, इनिशियल डिपॉजिट हमारा 5000 था, 5 × 2 दैट इज 10,000। अब देखिए डिफरेंस, क्या ये इन्वर्सली रिलेशन नहीं है? क्रेडिट क्रिएशन और दी जो भी डिपॉजिट है एकदम है। जब LRR आपका 20% है तब मनी मल्टीप्लायर जो मल्टीपल टाइम्स है वो 25,000 हो रहा है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर तो हमने कैलकुलेट किया 5 टाइम्स। क्रेडिट क्रिएशन जब 20% था तो क्रेडिट क्रिएशन 25,000 हो रहा है। यही जो LRR है डिपॉजिट रेशियो है, इसको हम लोग ने बढ़ा दिया, क्रेडिट क्रिएशन कम होने लगा। तो इसमें क्या हो गया? इन्वर्स रिलेशन हो गया। और इसमें कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल सोच लीजिए, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोग कितनी टाइम्स स्कूल में भी बता दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी, कि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन अगर क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? कम हो जाएगा। कब? जब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट LRR बढ़ा दिया जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। LRR बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं, अब किसी भी बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो वो जो लोन पे देगी तो वो कम दे पाएगी ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, 1000 का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, 800 क्या था और 200 वो लोन पे दे। ये क्या कर रहे थे कि कुछ मनी 200 वो अपने पास एज अ रिजर्व रख के 800 उसको लोन पे दे। अब यही जो % बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक क्या करेगी? अपने पास रिजर्व भी रखनी ज़्यादा लगेगी और लोन पे कम देगी। जब लोन पे कम देगी तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम ही हो पाएगा। जब पैसा मनी सप्लाई इकॉनमी में कम होगा तो कैसे ही क्रेडिट का क्रिएशन ज़्यादा होगा। इन दैट केस हम बोलते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन और जो भी डिपॉजिट रेशियो है, अब ये जो टर्म आपका दे दिया है, टर्म क्या है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब इसको घबरा मत जाएगा कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या है, वही है रिजर्व, हम लोग LRR बोलते हैं ना, लीगल रिजर्व, तो वही डिपॉजिट का रेशियो है। इन दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन है। आप पहले लिख देना कि व्हेन देयर इज हायर द मनी मल्टीप्लायर, जितना मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा द लेसर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद यही एग्जाम्पल लिखिए कि LRR 20% है तो हम लोग मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे, आप निकाल लोगे 5 टाइम्स, तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ? फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक अजम्पशन ले लेना कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो हमने 5000 ले लिया, एकदम सिंपल है। इसका 20% RBI ने डिसाइड किया था, मनी मल्टीप्लाई निकालेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे कि 5 × 5000 आपका कितना हो गया? 25,000। यही LRR 20% से 50% कर दिया गया, LRR इंक्रीज कर दिया गया तो मनी मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो गया। अब 5000 हमारा इनिशियल था, इंटू 2 टाइम्स 10,000। तो जैसे ही हम लोग ये बढ़ा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन
हो रहा है। जैसे ही मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। यही होता है आपका इनवर्स रिलेशन। एक हाइपोथेटिकल आपके ऊपर है, 5,000 को 10,000 ले लो, इस परसेंट को चेंज कर दो, इट इज़ अप टू यू। आप एग्जाम्पल लो, क्योंकि इसमें ये बोल दिया है कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन होगा आपका 13 होगा आपका 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स कहीं भी नहीं है, तो सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। कुछ ऐसा नहीं है कि बुक से बाहर आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, दैट इज जब कंजप्शन फंक्शन ADAS का क्वेश्चन है, ये उसी से ही रिलेटेड है, कुछ भी इसमें है नहीं, कर लेंगे एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोनॉमी, कंजप्शन फंक्शन आपको दिया है C इक्वल टू 200 प्लस 0.5 y, और y शुड बी कैपिटल, y स्मॉल में नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग एग्जाम में स्मॉल y लिख के बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें खुद भी देखनी चाहिए ना, हर चीज़ कोई बताता नहीं है। आप जब बुक में पढ़ रहे हो तो आपको दिखना चाहिए कि y कैपिटल है, y स्मॉल है। अब कंजप्शन फंक्शन का स्मॉल c ले लोगे तो सब चीज़ का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो c इक्वल टू 200 का 0.5 y आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि c क्या है, c इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। c क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक। फिर कह रहा है y इज द नेशनल इनकम, y क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, y नेशनल इनकम है। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज I दिया है आपका ₹400 करोड़, 400 करोड़ is the economy in the equilibrium at an income level ₹1500 करोड़। कह रहा है कि क्या वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगी जब इनकम लेवल ₹1500 करोड़ दिया है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि इज द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम when income level is ₹1500 करोड़, ठीक है। क्या इकॉनमी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगी जब ₹1500 करोड़ इनकम दिया हुआ है। सो जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आप जस्टिफाई करो। तो सबसे पहले आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आपको ये कंडीशन दे दिया है, फिर बोल रहा है कि आप क्या वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी जब इनकम क्या है 1500 करोड़ दिया है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया है इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई। स्टार्ट आप लोग ऐसे करेंगे कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन प्लस सेविंग मतलब अगर मेरी इनकम हो रही है तो मेरे पास दो ऑप्शन होगा, या तो मैं कंज्यूम करूंगी या तो मैं उसको सेविंग कर दूंगी, ठीक। और हमें ये भी पता है, इन ब्रैकेट आप ये भी लिख देना, I इक्वल टू एस। इनकम किसके इक्वल होता है, सेविंग के। अब वो कैसे होता है ये भी आप लिख सकते हो, AD इक्वल टू AS, दैट इज C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस, देन I इक्वल टू एस। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे I लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू c आपको दिया हुआ है कंजप्शन फंक्शन, सो 200 प्लस 0.5 y, आई इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया है 400, ठीक। अब आप लिखो y इक्वल टू 200 प्लस 400 कितना हो गया, 600 प्लस 0.5 y। अब y कॉमन है तो y इसको इधर लेकर आते हैं, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 0.5 y इक्वल टू 600। अब ये अगर कुछ होता नहीं तो इसको हम लोग 1 मानते हैं, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो गया, 0.5 y इक्वल टू 600। देन y इक्वल टू 600
अपॉन 0.5 कट करेंगे, देन y इक्वल टू कितना आ गया आपका ₹1200 करोड़। देखिए हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तब होगी जब इनकम ₹1200 करोड़ दिया होगा। ठीक है, हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तब होगी जब ₹1200 करोड़ दिया होगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि इज द इकॉनमी इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम लेवल इज 1500 करोड़। अगर यही आंसर आपका, क्योंकि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम लेवल की बात कर रहे हैं, तब ये अगर यही आंसर जो आपका 1200 की जगह 1500 आता, तब आप कहते कि हाँ हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, क्योंकि 1200 करोड़ ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। बट हम इसका आंसर जस्टिफाई और आंसर आप ये पहले कैलकुलेट करोगे, फिर ये कहोगे नो हमारी जो इकोनॉमी इज नॉट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम लेवल इज ₹1500 करोड़। इकोनॉमी क्या है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं है। यही आपका आंसर है 4 मार्क्स का। अब इतना आप नीचे एक स्टेटमेंट दे दोगे, क्योंकि इसमें बोला है जस्टिफाई योर आंसर। नो, फिर आप लिखोगे इकोनॉमी इज नॉट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन इनकम लेवल इज ₹1500 करोड़। इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द इनकम इज 1200 करोड़। तब जाके आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यू गॉट दी 4 मार्क्स, आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आंसर आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना जब सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको चेक करना, उतना इजी हो जाएगा उस पर नंबर देना। जितना कॉम्प्लिकेशन करेंगे वो आपके लिए भी प्रॉब्लम करेगा और किसी टीचर के लिए भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर जस्टिफाई और आंसर है तो यहाँ पे प्रूफ करने के बाद आगे मत बढ़ जाएगा। आपको जब जस्टिफाई करने को कह रहा है तो नीचे एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे 1500 करोड़ पे नहीं है, इकोनॉमी 1200 करोड़ पे इक्विलिब्रियम पे है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। ओके सो वन ऑप्शन इसका एक और भी दिया है, डिफाइन एक्सेंट सेविंग एंड दी फुल एम्प्लॉयमेंट। 14 में और में भी दिया है। फर्स्ट है डिफाइन एक्सेंट सेविंग और सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड दे रहा है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। एकदम सिंपल है, ये मैंने प्री बोर्ड में ही दिया था। एक्सेंट की जगह सेविंग की जगह बस इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो एक्सेंट सेविंग क्या होती है, आपकी प्लान्ड सेविंग होती है कि कोई भी इकोनॉमी में कितना प्लान किया जा रहा है। वही पोस्ट की बात होती है, मतलब पोस्ट समझ लीजिए कि वो बाद की ही बात हो रही होगी, वो एक्चुअल बताता है। अगर एक्सेंट सेविंग है दैट मीन्स इट शोज दी प्लान्ड सेविंग कि इकोनॉमी में कितनी सेविंग हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वही हो जाएगी जो इंडिविजुअल और दी कोई भी पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क, जो एबल हैं और कैपेबल हैं वर्क करने के लिए एंड दे गॉट दी जॉब। जो एबल हैं करने के लिए और दे आर रेडी एंड प्रिपेयर एंड कैपेबल टू डू जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। जो भी वेज रेट प्रिवेल कर रही है मार्केट में, उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे वो अगर एबल हैं, कैपेबल हैं काम करने के लिए और उन्हें जॉब मिल जा रही है, वर्क मिल जा रहा है, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे कोई भी देयर विल बी नो सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और दी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे कंडीशन नहीं होगी। वो सिचुएशन होगा जब कोई भी इंडिविजुअल आर एबल एंड कैपेबल टू डू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, इट इज़ कॉल्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा करना है तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी दिखा सकते हो। इफ़ एज इक्वल टू एस, जहाँ पे डिमांड बिकम्स इक्वल टू दी सप्लाई। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में ये डिवीजन हो गया होगा। एक्सेंट सेविंग आप एक्सप्लेन करो, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करो, खत्म ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, so question number 15 is
India's GDP contracted 23.9% in the April-June quarter of 2021. ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जो GDP थी इंडिया की वो क्या हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी 23.9% अराउंड. ठीक है, ये कब देखा गया, अप्रैल टू जून के क्वार्टर में देखा गया कि इंडिया की जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गई 23.9. देखिए ये सारे क्वेश्चंस, अब घबरा मत जाएगा कि क्या इसमें पूछ लिया, कुछ भी नहीं है, आपको बस एक सिचुएशन दे देगा और जो सिंपल सी चीज़ है वही पूछेगा. अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया की जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गई 23.9% इन दी अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ दी 22-21. ठीक है, कोविड की वजह से ये एकदम डाउनफॉल हो गया था. हम लोग ने पढ़ा था डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन, जब क्वेश्चन नंबर, आप लोग कौन सा डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए थे डेफिशिएंट डिमांड की, एज कंपेयर टू दी सेम पीरियड ऑफ 1920. ठीक है, इंडिया की GDP जब हम लोग 2021 में देखे हैं अप्रैल टू जून के क्वार्टर में, तो ये 23.9 कॉन्ट्रैक्ट हो गई है. और उसी ईयर के हम लोग जब इसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, 1920 के GDP से कंपेयर करते हैं, तो ये 23.9% क्या हो गई थी, फॉल कर गई थी. सजेस्टिंग डैट द लॉकडाउन हैज़ हिट द इकोनॉमी हार्ड. ये सजेस्ट किया गया कि जो लॉकडाउन हुआ वो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ही एकदम ही स्ट्रक कर दिया, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन पे ला दिया. ये एक हेडलाइन है विच इज़ गिवन बाय दी पब्लिश्ड इन दी हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था. ये एक स्टेटमेंट, एक लाइन आई थी न्यूज़पेपर में 1 सितंबर 2020 को. ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है. अब ये सब देख के घबराना नहीं है कि क्या हो गया, अब क्या करेंगे इसका, कुछ नहीं है. उसके नीचे एक लाइन दी होगी, बस उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए. ठीक, ये लाइन समझ में आ गई. फिर है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फिस्कल मेजर. बस खत्म बात, फिस्कल मेजर्स आ गया. अब फिस्कल मेजर्स आ गया, स्टेट एंड डिस्कस, आपको क्या करना है, डिस्कस करना है 2 फिस्कल मेजर दैट मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, लेगी टू करेक्ट द सिचुएशन इंडिकेटेड इन द अबव न्यूज़ रिपोर्ट. बस खत्म बात, कि जो भी अबव न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है उसमें जो भी सिचुएशन है, आपको यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स लेके पढ़ना नहीं है. आपको बस वो कह रहा है कि जो ऊपर वो सिचुएशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, आप उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग फिस्कल मेजर्स दे दीजिए. फिस्कल मेजर्स में हमें पता है फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है विच इज़ रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड दी एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है. ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी हम लोग पढ़े हैं, गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या क्या हो जाते हैं. गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लेती है, टैक्सेस के थ्रू, पब्लिक डेट के थ्रू, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू. एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ पे करती है, बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर पे करती है, डिफेंस पे करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. ये सारे गवर्नमेंट के हो गए. अब कह रहा है कि मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपको इस जगह पे पहुंचा दिया गया है कि आप इतना तक सोच सको एज अ इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट क्या करेगी. ठीक है, गवर्नमेंट फिस्कल मेजर्स हो गया. अगर आप देख रहे हो कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एकदम बहुत हार्डली क्या हुई है, हिट हुई है, एकदम सब कुछ डाउन जा रहा है. जब सब कुछ चीज़ें डाउन जाती हैं मतलब डिमांड लोगों की क्या हो रही है, कम हो रही है ना. तो डिमांड जब लोगों की कम हो रही है तो सप्लाई क्या हो जा रही है, एडी क्या हो जा रहा है, डिमांड एडी इज द लेस देन दी एएस. मतलब दिस सिचुएशन इज दी डेफिशिएंट डिमांड. ये डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है, डिफ्लेशनरी गैप की है. अब आपको क्या करना है, ये डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन और आपको ये डिफ्लेशनरी गैप को हटाना है. अब हटाने के लिए हम लोग कौन कौन से मेजर्स लेते थे, मेजर्स तो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड होंगे. बट टैक्स को इंक्रीज़ करेंगे कि डिक्रीज़ करेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करेंगे कि डिक्रीज़ करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी. बस यही आपको एक्सप्लेन करना है और ख़त्म कहानी आपकी. ये सारी चीज़ें आप लोगों को 10 बार बताई जा चुकी हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लास में, कि यही सारा हम लोग को क्या करना है, क्लियर करना है. तो इसमें कह रहा है कि 2 फिस्कल मेजर्स ले लो. फिस्कल मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, एक रेवेन्यू का ले लेते हैं. जब उसने 2 बोल दिया है, आपको बहुत ज़्यादा अपना है तो आप उसके नाम्स दिखा दो, डिफरेंट नेम दिखा दो कि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू के सोर्सेस ये हैं कि टैक्सेस है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिफरेंट टैक्स के साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, इशू करती है करेंसी, पब्लिक डेट करती है, बोरोइंग करती है बाय दी
जनरल पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से बाय इशूइंग द डिफरेंट सिक्योरिटीज, और एक्सपेंडिचर कर। अब इन दोनों में से दो मेजर्स को उठाओ, टैक्स को ले लो और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ले लो। इन दो मेजर्स को आपको क्या करना है, सिंपली एक्सप्लेन कर देना है। गवर्नमेंट टैक्स क्या करेगी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन पे? देखो लोगों की डिमांड कम हो गई है, जब गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा इम्पोज करेगी, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो भी टैक्स है, टैक्स अगर इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड की है, हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या करना है, ज़्यादा करना है, तो टैक्स को गवर्नमेंट कम कर देगी। तो एक हो गया आपका डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, एक ये हो गया। और सेकेंड हम ले सकते हैं एक्सपेंडिचर के साथ। अब डिमांड लोगों की कम हो गई, डिमांड लोगों की कम क्यों हुई होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो पैसा हमें क्या करना है, देना है। देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, लोगों को ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारा पब्लिक वेलफेयर का काम हो रहा है, एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर होने का मतलब है कि लोगों के पास ऑटोमेटिकली काम मिलेगा, काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो लोग उसको एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर से करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सिचुएशन थी डेफिशिएंट डिमांड कम होने की, इट बिकम्स इक्वल टू दी डिमांड। मतलब एज ही क्या हो जाएगा, सप्लाई के एएस के इक्वल हो जाएगा। बस यही है। तो जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो आपको एक केस स्टडी दे रहा है, उसको देख के घबराना नहीं है। सब कुछ चीज़ें आप ही की है जो आपने पढ़ी है, बस उसी को explain करना है, right? So it's all about your today's class. We will continue to solve this sample paper in the next class also. Thank you.